નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીમાં પાઠ 7 सोच अपनी अपनी એ ભણીશું। पाठ 7 सोच अपनी अपनी। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। એટલે કે પોતાના વિચારોને આપણે એપ્લે કરીએ એક પ્રકારનો વાદ વિવાદ છે। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। એટલે કે वाद विवाद कोई विषय पर बातचीत करते तो कोई एक विषय नक्की જ હોય છે। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में, એટલે કે કોઈ એક એનો पॉजिटिव पासू बोले छे तो कोई एक पक्ष है एनु नेगेटिव पासू बोले छे। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों में वाद विवाद करवाइए। હવે અહીં તમે બંને ચિત્ર જોઈ શકો છો। એકમાં ગામડાનું જીવન છે અને એકમાં શહેરી જીવન। ગામડામાં નદી વહેતી રહી છે, લોકોના ઘર કાચા છે, ગામડાના કાચા ઘરો છે, નદી છે, નદીમાં સ્ત્રી કપડાં પાણી ભરી રહી છે, બાળકો નાહી રહ્યા છે। જ્યારે શહેરના જીવનમાં આપણે જોઈએ તો સજ્જ પોશાક પહેરીને ત્યાં રસ્તાને છેવાડે લોકો ઊભા છે, વાહનો ચાલી રહ્યા છે અને शांतिનું वातावरण એવું લાગે છે। હવે નીચે सवाल છે, दोनों चित्रों में अंतर क्या है? दोनों चित्रों में एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का, એટલે કે એક ચિત્ર જોઈએ તો એક ચિત્ર ગામનું છે અને બીજું चित्र नगरનું છે। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग है। એટલે કે એના ઘાટ ઉપર જોઈએ તો નદી કિનારે બાળકો નહાઈ રહ્યા છે, કપડાં ધોઈ રહ્યા છે, પાણી ભરી રહ્યા છે અને કામ કરી રહ્યા છે। गांव में कच्चे घर है, એટલે કે ગામડામાં કાચા ઘેર હોય છે। लोग मामूली कपड़े पहने हुए, એટલે કે લોકો સામાન્ય કપડાઓ પહેર્યા છે। लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है, એટલે કે ગામનું જે વાતાવરણ હોય છે એ ખૂબ શાંતિનું વાતાવરણ હોય છે। હવે જ્યારે બીજું ચિત્ર જોઈએ તો નગર કે चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क, એટલે કે બે બાજુનો રસ્તો, કે એક બાજુથી વાહન આવી શકે અને બીજી બાજુથી વાહન જઈ શકે છે। पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे, એટલે કે પાકા મકાનો દેખાય છે અને રસ્તા ઉપર વાહનો ચાલી રહ્યા છે। વાહનો કે કારણ શોર, એટલે કે વાહનો જે ચાલે છે એના કારણે અવાજ આવે છે। लोग आधुनिक वेशभूषा में, એટલે કે લોકો આધુનિક કપડાઓથી સજ્જ થયેલા દેખાય છે। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? कि गांव और जीवन में क्या अंतर है, કે ગામડાનું જીવન અને શહેરનું જીવન છે એમાં શું અંતર છે અને તમને કયું સારું લાગે છે અને શા માટે? તો ગાંવ કે જીવન में सादगी सरलता, એટલે કે ગામડાનું જીવન હોય છે એ સાદું સરળ હોય છે। किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं, એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની બનાવટ પણ જોવા એવી મળતી નથી, કે કોઈ આમ વધારે પડતા કપડાં કે સજ્જ થઈને આવતા નથી। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते, એટલે કે કોઈ પાણી જે પીએ છે નદી અને કૂવાનું પાણી પીએ છે। वे अपने खेतों में उगाए अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं, એટલે કે ગામડાના લોકો ખેતરોમાં જે અનાજ ઉગાવેલું હોય એ અનાજ ખાય છે અને રોજ તાજી ઉગાવેલી શાકભાજી હોય છે એ ખાય છે। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है, એટલે કે લોકો જે હોય છે એ પાકા ઘરમાં રહે છે અને એમનું જીવન છે પ્રકૃતિથી નજીક હોય છે। હવે એક બાજુ જોઈએ નગરનું જીવન, તો નગરનું જીવન કેવું હોય છે? नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, એટલે કે આમ એક પ્રકારનું આ જલજલિયું હોય છે અને बनावटी હોય છે। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते, એટલે કે લોકો આધુનિક કપડાઓ પહેરે છે। वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते, એટલે કે શહેરના લોકો પાકા મકાનોમાં રહે છે અને નળનું પાણી પીવે છે। और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं, અને બજારથી અનાજ અને ફળ શાકભાજી એવું ખરીદીને ખાય છે। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, એટલે કે
નગર એટલે કે શહેરના જે રસ્તાઓ છે એ રસ્તાઓ હંમેશા વાહનોનો અવાજ થતો હોય છે. લોક દુકાનો બેંકો और दफ्तरों में काम करते हैं એટલે કે લોકો દુકાનોમાં બેંકમાં અને ઓફિસોમાં काम કરે છે. नगर के जीवन में शांति नहीं होती. लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है એટલે કે નગર જીવનમાં જોઈએ તો શાંતિ હોતી નથી અને તેઓ પ્રકૃતિથી ખૂબ દૂર હોય છે. એટલે કે નગર જીવનમાં ખૂબ દોષોથી ભરેલું છે, છતાં પણ ઘણા બધાને એવું નગર જીવન જ પસંદ છે. અને નગરના જે વ્યક્તિ હોય છે એ શિક્ષિત અને પ્રગતિશીલ હોય છે. નગરમાં સારી સ્કૂલ કોલેજ હોય છે, એના કારણે સારી શૈક્ષણિક યોગ્યતા મળી શકે છે. ઘણી બધી સંસ્થાઓ હોય છે, પુસ્તકાલય હોય છે, એટલે કે વ્યક્તિની યોગ્યતા વધારવા માટે આવશ્યક છે. ઉન્નતિને જીતવા માટેનો જે અવસર છે નગરમાં મળી રહે છે, એટલે ગામમાં મળતો નથી. એટલે કે એના કારણે નગરનું જીવન છે બધું જ સરળતાથી મળી રહે છે. એના કારણે નગરનું જીવન ઘણા બધાને સારું લાગે છે. क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं તો ક્યું? એટલે કે તળાવનું જે પાણી છે એ પીવા માટે યોગ્ય છે અને નહીં તો શાના માટે યોગ્ય નથી? તો તાલાબ કા જલ પીને કે लिए યોગ્ય નહીં એટલે કે તળાવનું પાણી પીવા માટે યોગ્ય નથી. તાલાબ ચારો ઓર સે બંધ હોતા એટલે કે તળાવ જે હોય છે ચારો તરફથી બંધ હોય. હવે જેવી રીતે નદી હોય, નદી હંમેશા વહેતી હોય એટલે નદીનું પાણી ચોખ્ખું હોય છે, પણ તળાવ જે હોય છે ચારે તરફથી બંધ હોય છે. उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती એટલે કે ચારે બાજુથી બહારની ધૂળ માટી એવું પાણીમાં પડે છે. પેડો કે પત્તે ગિરકર સડતે રહેતે એટલે કે આજુબાજુના ઝાડના પાન એમાં પડે છે અને એમાં જ સડતા જાય છે. લોક તાલાબ કે કિનારે કપડે ધોતે હૈ ઓર જાનવરો કો નહલાતે હૈ એટલે કે તળાવના કિનારે લોકો કપડાં ધોએ છે અને જાનવરોને નવડાવે છે. यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है એટલે કે આ બધી જે ગંદકી હોય છે એ તળાવના પાણીને દૂષિત કરી દે છે. यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है એટલે કે આ જે દૂષિત જલ એટલે કે ગંદુ પાણી પીવાથી હેજા, પેચિસ જેવી जानलेवा बीमारियों થાય છે. इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं એટલે કે એના કારણે તળાવનું જળ પીવા માટે યોગ્ય નથી. नीचे दिए गए मुद्दों के आधारित विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने कारण सहित प्रस्तुत कीजिए. प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्टल, यातायात, ग्लोबल वॉर्मिंग. પ્રત્યેક વસ્તુ કે દો પહેલું હોતે એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એની સારી બાજુ પણ હોય છે અને ખરાબ બાજુ પણ હોય છે. એક પહેલું उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाती है એટલે કે એક પોઝિટિવ એટલે કે એક સારું પાસું પણ હોય છે અને એક ખરાબ પાસું પણ હોય છે. विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं. विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया એટલે કે વીજળીની જ્યારે શોધ કરી તો માનવ જાતિ ઉપર ખૂબ ઘણો મોટો ઉપકાર થયો. ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है. હવે વીજળીથી શું નથી ચાલતું? ટ્યુબલાઇટ, પંખા, એસી, કુલર, ફ્રીજ, ગીઝર, લિફ્ટ વીજળીથી ચાલવાવાળી મશીનો છે. ડૉક્ટરી પેશે કે તમામ ઉપકરણ, એલોપેથી દવાઈએ विज्ञान ने हमें दी है. टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं. फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है. कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है. मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं. विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है. चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं. विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है. इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं. विज्ञान के कारण आजकल जल और वायु में भी प्रदूषण बढ़ा है. इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान के वरदान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उनके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं. सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे. इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिक को आभार मानना चाहिए. उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है.
कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वॉल्टियर की कलम की ताकत से हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम से ही अधिक शक्तिशाली है। એટલે કે આપણે જોઈએ તો કલમ કે તલવાર યુદ્ધમાં કામ આવે છે, લોકોનું ખૂન વહાવવા માટે કામ આવે છે, જ્યારે કલમ જે હોય છે તલવાર ખૂન વહાવવા માટે કામ આવે છે, જ્યારે કલમ હોય છે કલમ આનંદ આપે છે। ઘણા બધા એવા ગ્રંથો લખાયા છે, એને વાંચીને આજે જેની બુદ્ધિ ખરાબ હતી જેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ હતી એની બુદ્ધિ હવે સારી થઈ ગઈ છે। એટલે કલમ અને તલવાર કરતાં કલમને શ્રેષ્ઠ એવું માનવામાં આવે છે। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, शिकागो। AAFP हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुआर के बांध धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 101.6 करोड़ वर्ष तक उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैसी शिष्य के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल को ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीला बेल्ट से वह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा है कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिसके हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तो पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पल के झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। હવે પછીનો આપણે બીજા ભાગમાં ભણીશું।